Hello everyone, welcome to Do Dream. This is the NCERT book reading series. There are many exams of Public Service Commission in the coming months. I would like to do this kind of favor for the beginners who stepped in preparing for Public Service Commission exam. Basically, BPSC exam date has been published already and UPSC exams date is fixed on 5th of June. In this video, primarily I would read the lesson in English language but keep on translating in Hindi paragraph wise. In this video, I am bringing to you the NCERT reading session. We will read the Geography chapter 5, Major Domains of the Earth. Kindly feel me sitting next to you and reading it together at the same time. Let's start the video. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो कि भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water covers a very big area of the Earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is, ice, water and water vapor. पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन का नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। The biosphere is narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर, भूमंडल। Before we start reading out the lithosphere, we should go to the word origin. In the Greek language, lithos means stone, atmos means vapor, and hudor means water, and bios means life. So lithosphere, the solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. There are two main divisions of the earth's surface. The large land masses are known as the continents and the huge water bodies are called the ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. You can look at the map of world. Are all the land masses connected with one another? The level of seawater remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपरपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है।
विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानचित्र को देखकर ऐसा लगता है कि क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। तल मतलब नीचे का भाग। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे 0 माना जाता है। The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine the depth of the sea is much more than the highest point? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी क्यों हो सकती है? डू यू नो Edmund Hillary, New Zealand, belong to New Zealand, and Tenzing Norway, Sherpa, belong to India, were the first men to climb the highest mountain peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29th May 1953. Junko Tabai, Japan, was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was Bachendri Pal. न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तावेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। नाउ कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर वेट बॉडीज। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. You look at the map of the world, notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जल राशि ओशन। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए और पता लगाइए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। नाउ एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया कवर्स अबाउट 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. Europe plus Asia. एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप और एशिया कहा जाता है। नाउ यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. And you can look at the map of the world and locate it. यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है।
आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखने के बाद इसकी स्थिति को भी पता लगाया जा सकता है। Now, Africa. Africa is the second largest continent after Asia. The equator or 0-degree latitude runs almost through the middle of this continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator, and the Tropic of Capricorn pass. If you look at the world map, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वर्ल्ड मैप को देखने के बाद पता चल सकता है कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. By looking at the world map, you will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer, and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखने के बाद हम पता कर सकेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका के मानचित्र को देखने के बाद बताया जा सकता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका. North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surrounded this North America continent. उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि स्थल संधि कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। नाउ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर which 2 oceans surround it on the east and west. The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं ये पता करना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. Australia is called an island continent. ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका. Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India has also research stations there.
These are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं और इनके नाम हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नाउ हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with the land. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in our atmosphere all comprise the hydrosphere. पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। More than 90% of the earth's water is found in the ocean and is too salty for human use. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is always available as fresh water for human use. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जिसमें नमक ना हो, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ओशंस। Oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. The ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean waters are the waves, the tides, and the ocean currents. The five major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, and the Indian Ocean, and the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size. महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 of the earth. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South Americas surround it. Look at the map and find out the location of the continents around the Pacific Ocean. प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। द अटलांटिक ओशन. द अटलांटिक ओशन इज द लॉन्गेस्ट second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side.
The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका हैं और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, इंडेंटेड है। यह अनियमित और इंडेंटेड कोस्टलाइन प्राकृतिक पोताश्रयों, बंदरगाहों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। यहाँ की व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In the north, it is bounded by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। द साउदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक ओशन Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. Arctic Ocean is bound by northern coasts of North America and Eurasia. आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, नॉर्थ पोल में स्थित है और यह नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा है। एटमॉस्फेयर The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays. हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायु हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature, and other properties. These layers, starting from Earth's surface, are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहा जाता है। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 90% of clean, dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon, and others comprise 1% by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in the growth of living organisms. Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm.
It is also essential for the growth of plants. वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवाओं का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एटसेट्रा की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जबकि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई गर्मी या ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. You know, the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व डेंसिटी समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में, डेंसिटी में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ स्थानों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को, जलती हुई वायु को पवन कहा जाता है। बायोस्फीयर, जीवमंडल। बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ. द बायोस्फीयर is the narrow zone of contact between the land, water and air. Biosphere is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े मैमल्स के आकार में पाई जाती है, स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forests for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. Discharge of water material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एनिमल किंगडम और पादप जगत
प्लांट किंगडम में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप से में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर स्लोप फील्ड पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं कैलामिटीज जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाना, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स pollute the air. Carbon dioxide CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. उद्योगों, थर्मल पावर प्लांट्स, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का जो एमिशंस होता है, जो इससे धुआं निकलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। That's all for today. I will bring the next chapter of class 6 geography tomorrow.